Earlier we have discussed the properties of the carbon. Today we are discussing the versatile nature of the carbon. And here 3 points are given. One is that carbon is tetravalent. Tetravalent or having the tetravalency. It means हमने पढ़ा है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सो फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स 4. दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे सो इट फॉर्म्स स्ट्रक्चर लाइक दैट. ये 4 एटम्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स 4 मोनोवेलेंट बॉन्ड्स. ये 4 एटम्स के साथ में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कर सकता है. दैट इज व्हाई इट्स वैलेंसी इज टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंसी एंड द एटम इज टेट्रावैलेंट. The next point is given catenation. Catenation is a property of self-linking bond, self-sustaining bonds. कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. Because having the 4 valency means we can share like this. Suppose this is a one carbon, it forms again combined with other carbon, another. It can always form the covalent bond. हर एक के साथ में ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. So it can form long chain compounds. ऐसे बहुत सारे long chain compounds बन सकते हैं by self linking of the carbon atoms. And this process is known as a catenation. Why it happens? Why it is stable? It is stable for few reasons. As the size of the carbon atom is small. Due to small size, it is a stable. Second thing, the bond, carbon-carbon bond is a strong bond. That is why it is a stable and it forms so number of compounds by the self-linking. As I have shown you. ये सिर्फ 4 कंपाउंड्स के लिंकिंग है. ऐसे बहुत सारे 60-70 कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर कंपाउंड फॉर्म करते हैं. समटाइम्स इट इज ऐसे चेन वाले हैं, समटाइम्स साइड चेन वाले भी कंपाउंड बन सकते हैं. हाउ इट इज? आई एम शोइंग. सपोज 1 2 3 4 कंपाउंड्स इन अ चेन. देयर मे बी वन साइड चेन. एक ऐसी साइड चेन भी बन सकती है. वन साइड चेन में भी है, यहां पर भी बन सकती है. और इन सब के नाम होते हैं विच आई विल डिस्कस यू later in this video or the next one. So how these carbons are sharing electrons with each other and forming self-linking bond. आपस में ही bond बना रहे हैं, एक long carbon chain compound form कर रहे हैं. It's not only. Then third point, tendency to form multiple bonds. Here I have shown you the monovalent bond. These are the monovalent bond. This we have learned in the 9th standard. अगर सिंगल बॉन्ड है it's a monovalent bond. कई बार डबल भी बनाते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं. Like here, इसी में ही we can have, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है. It may be the triple bond भी हो सकता है. Like carbon forms a triple bond here. So trivalent bond. So here this is a monovalent bond. This is a divalent bond and the trivalent bond. Carbon does not forms bond with the carbon. Even it also make the form with the monovalent compound जो होते हैं उनके साथ में भी ये बॉन्ड बना सकता है. Like monovalent क्या है? हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट है जहां पर ये बॉन्ड जुड़ सकता है. Right? Chlorine is a monovalent जहां पर ये जुड़ सकता है. नाइट्रोजन is there जुड़ सकता है. ऑक्सीजन इज देयर. यहां पे ये सब कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर सकते हैं. दे फॉर्म द बॉन्ड्स एंड द रीजन ऑफ इज ओनली द स्मॉल साइज and strong CC bond
carbon to carbon bond, that is a strong covalent bond. These are the properties and this is very important. बहुत बार बोर्ड्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज और थ्री प्रॉपर्टीज why it is stated to be the versatile nature of carbon. Why? What is the versatile nature of carbon? This can be stated. This type of question can be raised number of times in the course, and the reason is these three are there. One, the tetravalency, and the catenation process, and third, tendency to form multiple bonds with other atoms. Multiple bond with what? With others. Other monovalent compound. वो जो मैंने बताए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, and many more. Now, next we are going to discuss about the hydrocarbons. Are found inside the body of the living organism. That's why said to be organism. Later they are made in the labs. And urea was the first compound which was made in the lab by the world scientists. Now that is a vital theory कि ये जो लिविंग में मिलते हैं they are, but now a different theory is there. The substances or the compound made from the hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur and oxygen, they are considered as an organic compound. They are also known as the hydrocarbons. And study of these compound is known as a organic chemistry. इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. In the 12th standard, there is a special part of that. When we study more higher standard, there is a special stream is there. So hydrocarbons, the compounds made from हाइड्रोजन एंड कार्बन, इन दो से मिलकर जो बने हुए कंपाउंड है, दे आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन्स. These hydrocarbons can divide into two types. One is saturated or another is unsaturated. The hydrocarbons, those have only the single bonds. जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड इज सिंगल, they are known as a saturated hydrocarbons. And where there is a double or triple bonds are there, double or triple bonds are there, they are said to be unsaturated hydrocarbons. These are also known as a single bond के compound है. I am telling you how. This is ये कार्बन single chain. These are ये single chain के compound है. They are considered as saturated hydrocarbons. इनका एक और नाम है. Their name is alkane. Their name is alkane. The double bond like this. C double bond C. अब यहां पे कितने, क्या ऐसे हो सकते हैं? ये जो ब्लैंक प्लेसेस हैं, जो ब्लैंक मैंने दिखाया है, एक्चुअली देयर इज अ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप याद होगा, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन हाउ टू मेक दिस. इन सब के बीच में सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं लाइक दिस. ये दिस और लाइक दिस. Similarly we can make here, I am making it with the other color. Hydrogen is connected here. If you recall, then you will find. इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4. 4 carbon are there. We can say C4. Hydrogen how many there are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C4H10. This is the formula of this compound. And here all the bonds are single. That is why I said it to be what? इसको जनरल नेम इसको हम एल्केन बोल. What about here? Is this formula is correct? जो डबल बॉन्ड में is the formula क्या हो गया? C2 और H6. C2H6 और बॉन्ड कैसा लगाया?
डबल। कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए? व्हाट आई हैव शोन यू, इसके अभी पहले शायद याद होगा मैंने बताया था, कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। 4 bonds, each bond constant for the 2 electrons. 4 to the 8 electrons outermost में. What about here? इस कार्बन के साथ में कितने bonds दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5. So is it correct? No, it's not correct. Either you write this, then correct. 1, 2, 3, 4, 5. 4 to the 8 electrons. एक bond 2 electron के लिए. Otherwise, if you are writing this 2 bonds, so we have to remove this one. कंपाउंड क्या बन गया? C2H4. एंड दीज कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड है, दे आर सेड टू बी एल्कीन्स. व्हाट इज एल्कीन? एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए व्हाट इज दैट? 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. यस, 1 कार्बन, 1, 2, 3 ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. सो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड हियर? ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड हियर. सिमिलरली 1 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड हियर. कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए? 1, 2, 3, 4. सिमिलरली इस कार्बन के साथ 1, 2, 3, 4. 4 to 8. And the compounds, those have triple bonds. इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C2H2. And they are generally known as a alkynes. What is alkynes? So compounds having, first क्या हुआ? Compounds having single bond. Compounds having single bond. This is alkanes. Compounds having double bonds, alkenes, and compound having triple bonds, alkynes. I am explaining you again it in the different manner. So yes, come to the topic. Organic compounds are 2 types of saturated and unsaturated. They are hydrocarbons. That means they are made by hydrogen and carbon. Those have the bond. इनके bonds कैसे हैं? Those have the bonds single bond. They are said to be saturated. इन सब के सारे bonds single होते हैं. I have shown earlier. मैंने आपको बताया कैसे. This is, ये कार्बन आपस में single bond के साथ में जुड़े हुए like this. ये भी थोड़ी पहले डिस्कस किया. Those having the double bond, they are unsaturated. They may have the double as well as a triple bond भी हो सकते हैं. Double भी है, triple भी है. They are unsaturated. Double, yes, like this. एक double bond ये, और यहां पर कितने? 2 कार्बन. एक कार्बन ये और एक कार्बन ये. If you are making this, so yes, एक ही डबल बॉन्ड है. यहाँ पे yes, you may say कि सर यहाँ पे डबल बनाया, यहाँ क्यों डबल बनाया? ठीक है, the question may be raised. Now what is there here? See how many bonds are here. इस कार्बन के कितने bonds है? First कार्बन 1, 2, 3, 4. Completed? 4 to 8. इस कार्बन के साथ में 1, 2, 3, 4. What about this carbon? ये बॉन्ड कितना? 1, 2, 3 और 4 is required, right? That is why I have kept here 4 bonds. अब ट्रिपल वाले के केस में क्या है? Yes, 1 triple bond here. This is, you can make like this. इसके पास only 1 is required. H अगर जोड़ेंगे तो 1 H is required. इस कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड्स हो गए? This carbon 1, 2, 3 and 4. 4 to 8. What about here? 1, 2, 3, 4, 8. And what about here? 1, 2, 3 and 4. The name, इनका जो जर्नल नेम है, इनको जर्नली हम क्या बोलते हैं? नेम. Their journal name is there. इनका जर्नल नेम है, जर्नल नेम is alkane. They are said to be alkene.
and they are said to be alkyl. अभी आगे नेक्स्ट हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे. देयर अगर कोई कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसमें जो सफिक्स यूज होगा, सफिक्स मींस नाम के बाद यूज होगा, दैट इज ये यूज हो जाएगा. एन वर्ड यूज करेंगे. अगर डबल बॉन्ड वाला होगा देन वील यूज सफिक्स इन. आई विल टेल यू हाउ. और अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स विल बी आइन. In the mathematics, you might be have read the some numerals numbers. Those belongs to the Latin or the Greek. Meta, etha, propa, buta, penta, hexa, etc. Penta तो सुना सबने होगा. Pentagon, hexagon, heptagon, octagon, decagon. You might be have read in the mathematics. So ये कुछ एक numbers है which we have to learn. जो हमें पढ़ने पड़ेंगे एंड वी हैव टू रिकॉल इट. आई एम राइटिंग दिस नंबर हियर. यहाँ पे कोने में थोड़ा सा इतने पोर्शन पे लिखते हैं, फिर उसके बाद ये बात. वन के लिए क्या यूज करेंगे? तो वर्ड इज मेथ, METH मेथ और मिता. 2 के लिए ईथा, ETHA ईथा और ईथ. 3 के लिए prop, PROPA proper. 4 के लिए buta, BUTA buta. 5 penta, pent. 6 hexa, hex. 7 hepta, octa. 8 के लिए octa. 9 के लिए neo and 10 के लिए deca. बट हमारे सिलेबस में इतना ही है. ऑफकोर्स 8 तक देख लो, इनफ. ऑक्टा, ऑक्टागन. चलिए अब ये नंबर्स नंबरिंग में, नॉमेनक्लेचर में हेल्पफुल होंगे. दैट इज व्हाई वी हैव टू अवेयर दीस नंबर्स. लर्न करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अब ये तो जर्नल नेम है. व्हाट इज इनके सबके जर्नल नेम है. सो दे आल्सो हैव द जर्नल फार्मूला. इन सबका जर्नल फार्मूला भी है. What is journal formula here? इनका जो journal formula है that is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Their journal formula is there CnH2n. And इनका formula है CnH2n minus 2. For example, इनका फर्स्ट मेंबर अगर होगा, if we say C is equals to 1, C is equals to 1, the first member will be C के लिए 1, C1, H 2 into 1 plus 2. यहाँ पे कंपाउंड क्या आ गया? CH4. कंपाउंड इज CH4. 1 2 1s are 2 plus 2 CH4. This is the first compound, first member. और फर्स्ट मेंबर है कार्बन 1 है, सो 1 के लिए क्या यूज करेंगे हम? वर्ड मेथ. और सफिक्स क्या यूज करेंगे? एन. सो इट्स नेम इज मीथेन. व्हाट इज इट्स नेम इज मीथेन. कम टू द टॉपिक. यहां पर देखते हैं सेकंड वाले के लिए क्या है. C1 और H कितना है? 2. ये कंपाउंड बनता है? ये कंपाउंड नहीं बनेगा. लेट्स ट्राई. कंपाउंड बनता है C. एक यहां पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां पर. व्हाट अबाउट द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8. कितने हो रहे हैं? 1 के साथ इसने यहां पे शेयरिंग कर ली, 1 की शेयरिंग यहां पे कर ली. कम टू द टॉपिक. पुराने वाले पहले चलते हैं. कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 2 तो हाइड्रोजन के ये हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए. एंड व्हाट अबाउट द कार्बन? 2 4 6. कितने चाहिए? 8. क्या हो रहा है ऐसा कुछ?
नहीं बन रहा है, सो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। सिमिलरली यहां पर भी कार्बन फर्स्ट वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट कंपाउंड। इफ C is equals to 2, if C is equals to 2, यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा? C 2H 2 into 2 4 plus 2 that is a 6। नाम क्या इसका हो जाएगा? कार्बन कितने हैं? 2, दो कार्बन है, सो इट इज सेड टू बी 8th, ETH 8th, और सफिक्स क्या लग गया? 8, सो इट्स नेम इज इथेन। व्हाट अबाउट हियर? पहला कंपाउंड तो बना ही नहीं, सो वी शुड रब दिस फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड क्या बनेगा? फॉर्मूला इज C2H 2 into 2 that is a 4। क्या ये कंपाउंड बन सकता है? लेट्स चेक इट। क्या कंपाउंड कैसे बना? आई एम मेकिंग द डायग्राम हियर। C2H4 कितने कार्बन है? 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 2 ये लग गए यहां पर, 1 this। अब कार्बन के पास यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हो? कार्बन के 4 होना चाहिए एटलीस्ट। हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा? डबल, इज इट? तो डबल बॉन्ड है। नाउ कार्बन के पास 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हो गए, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके पास भी 1 2 3 4 मींस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। कितने कार्बन है? 2, ईथ, और इसका सफिक्स क्या इसका यूज हो रहा है? इन, सो इट्स नेम इज इथीन। सेम हियर, C2NH2, CnH2n minus 2, C is equals to 2, H2, 2 2s are 4, minus 2, that is C2H2। सेम हियर, कितने कार्बन बच गए इसके पास? C2H2। बॉन्डिंग्स कैसे होंगी? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 1 2 3। सो कंप्लीट नहीं हो रहा है, सो 1 more bond is required here. So these compounds have triple bonds as I have mentioned here. So कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, ऑफ कोर्स वहीं से शुरू होगा 8, पर सफिक्स क्या यूज हुआ? आइन, YNE, so its name is ethyne। What is? Name is ethyne। Similarly, तो ये कुछ एक डिफरेंट है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट भी ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। इफ C is equals to 3, if C is equals to 3, what will be there? C3H 2 3s are 6 plus 2 that is a 8। 3 कार्बन, proper, so its name will be propane, because हमने सफिक्स क्या यूज किया? A, प्रोपेन। यस, यहां पर भी कंपाउंड बनेगा, इट इज C3H, व्हाट विल बी देयर? 8 minus 2, that is C3H6, CnH2n, is it? CnH2n, C3 और 2 3s are 6, 3 कार्बन, suffix in, so its name is propene। Similarly here, C3H4, 2s are 6, 2 3s are 6, minus 2, 6 minus 2 that's a 4। तो this compound is this one, और इसका नाम जो आएगा, its नाम is propine। What is propine? PYNE, propine। So this is a general things which I have discussed to you। Now there is one more, ये सारे chemically differences हैं। One more is there, physically how they react, chemically how they react। ये जितने भी हैं बिना स्मोक के जलेंगे, इनको जला, they will burn completely without producing any smoke। And what about these? Unsaturated will burn
बाय प्रोड्यूसिंग शूटी फ्लेम, धुएं वाली फ्लेम के साथ में जलेंगे, कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, इनकम्प्लीट बर्न करेंगे. So these are the properties of saturated and unsaturated hydrocarbons. इनका स्ट्रक्चर वाइज भी डिफाइन किया गया है, जैसे यहां पे ये बनाया गया है ऐसे इनके स्ट्रक्चर्स भी आते हैं. सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर वाइज आई विल डिस्कस यू लेटर. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, दे आर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कस अभी किए, दे आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. वन द चेन और ओपन चेन, and another is a closed chain. Open chain compound and closed chain compound. Like if they are forming structure like this, 1 2 3 4 long chain ऐसे बना रहे, if they are making the long chain, that is a open chain. Maybe ऐसे भी हो सकता है 1 2 double, this is double chain आई, ये दिस, तो दो कंपाउंड आ गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया. जो ब्लैंक प्लेसेस हैं, हियर यू हैव टू पुट हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हियर हियर यू कैन पुट हाइड्रोजन हियर, राइट, इन द ब्लैंक प्लेसेस. सो दीज आर द कंपाउंड. सिमिलरली है, यू कैन पुट हाइड्रोजन हियर. सो दीज आर द कंपाउंड, दोज आर ओपन चेन कंपाउंड. What is chain is open, long chain compound. Okay, this may be simple chain as well as branched chain. The chain may be branched like this, 1 2 3 4, and here we have one side chain. This is एक side chain है. It's not a side. It's not a side chain. अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन पुट किया है, so we can't say it is a side chain. ये side chain नहीं है. Only the carbon is there that forms a side chain. जहां पर भी कार्बन है, it is forming this, that is side chain is it. ठीक है? So ये कैसे कंपाउंड है? चेन्ड कंपाउंड है, लॉन्ग चेन. And another kind of a compound is there, closed chain compound. Closed chain compound like this. अगर yes, 1 carbon, 2 carbon here, 3 carbon is here, और एक, अब बॉन्ड कैसे बनेंगे? हर एक के साथ में 2 हाइड्रोजन. This is a place of the hydrogen, and they are forming cyclic structure. So they are known as a closed chain compound. इन सबके नाम भी है. जैसे if you talk about this one, इसका नाम क्या होगा? Of course I will discuss you later, लेकिन अभी मैं इसका नाम बताता हूँ. इसका नाम होगा 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो इट्स अ प्रोपेन की जगह पे क्या हो गया? प्रोपीन हो गया, और प्रोपीन की प्लेस हो गई, प्लेस इज 1, इट्स नेम इज 1 इन प्रोपेन, और प्रोपीन 1, प्रोपीन 1. सिमिलरली व्हाट अबाउट हियर? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन वाले को हम क्या बोल रहे हैं? ब्यूट, ब्यूटा. सारे बॉन्ड कैसे हैं? सारे बॉन्ड सिंगल हैं, डेफिनेटली इट इज अ ब्यूटेन, क्योंकि ये एल्केन होगा. अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता, इट इज अ ब्यूटाइन. व्हाट अबाउट हियर? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो साइड चेन वाला आ गया उसमें एक अलग नाम आ गया. इसका नाम 1 2 3 4, 4 कार्बन है ब्यूटेन, एक 5वां कार्बन साइड चेन में लगा हुआ है, इस नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन. ऑफ कोर्स कैसे लिखा है ये आगे डिस्कस करेंगे. 2 मिथाइल ब्यूटेन. सिमिलरली यहां पर भी है, इसका भी नाम है, 3 कार्बन है, एंड इट्स नेम इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन. सेम वो हेक्सेन भी बन सकता है, साइक्लोहेक्सेन. आई एम मेकिंग हियर 1 2 3 4 5 एंड 6. मीन्स ये जो प्लेसेस हैं, ब्लैंक प्लेसेस हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे सब कार्बन लगा हुआ है, और हर एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. If the structure is like that
and this is known as a cyclohexane. क्यों? क्योंकि कितने कार्बन है? 6 कार्बन आते हैं. 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं, and they are arranged in the cyclic manner. That's why known as a cyclohexane. So this is how the structure wise or some more property wise these hydrocarbons are distributed. One on the basis of the structure and then on the basis of the bonds. They have the physical and chemical properties. Next, our topic is nomenclature of hydrocarbons.